Yes, students, thermodynamics, next type of problems. In this next type of problem, the problem which is related with this Wmax. The Wmax part is very important. Maximum work is performed, and when maximum work is performed, it is a very slow process. It is infinitesimally slow process. In this infinitesimally slow process, here the condition is process is isothermally reversible process. When isothermal reversible process is going on, the driving force and opposing force differ by a very small amount. Driving force and opposing force differ by a very small amount. The formula is W max is equal to minus 2.303 nRT log of V2 upon V1. Number of moles of gases which are ready to expand or compress. R is gas constant which is given to you. T is temperature is also there. 2 moles of gas expanded isothermally reversibly. 2 moles of an ideal gas expanded isothermally and reversibly from 20 liter to 30 liter. Calculate the work done. Yes, in this the temperature is about 300 Kelvin. 300 Kelvin is the temperature. 300 Kelvin part is the temperature. Given data, at first you must write what is given part. Given part, N is equal to number of moles of gases, 2 moles. 2 moles. R is equal to R is equal to 8.314 joule per Kelvin per mole. It is our R. Temperature T temperature is equal to 300 Kelvin. Temperature T is 300 Kelvin. V1 is initial volume, V2 is final volume. V1 is initial volume, V2 is final volume. When initial and final volume, you are taking these two types of volumes, comma, initial volume is 20 liter and final volume is 30 liter. You must know that whatever it may be, what is the unit of nRT, it is not important, but volume V1, V2, they are in same unit, either in liter, either in decimeter cube, either in meter cube. They are in the same unit. These two parts are in same unit. You do not want to change any type of unit for volume, then you must change. You do not change the unit if they are given in the same similar part. Okay. Yes. We put this value W max is equal to minus 2.303 into 2 into 8.314 temperature 300 into log of 30 liter divided by V2 is 30 liter divided by 20 liter, it means it is 1.5 minus 2.303 into 2, it is in mole, 8.314, it is in joule per Kelvin per mole, and 300 is in Kelvin into log of 1.5, log of 1.5. मोल कैंसिल करना है आपको,
केल्विन केल्विन भी कैंसिल होगा, यूनिट की तरफ देखना है, मोल मोल गेट कैंसल्ड, केल्विन केल्विन गेट कैंसल, ओनली जूल विच इज टू बी कमिंग। तो ये -2.303 आपको लिखना है, इंटू 2 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू लॉग ऑफ 1.5। आपको लॉग ऑफ 1.5 देखना है, तो लॉग ऑफ 1.5 देखने के लिए ये लॉग टेबल का यूज करना है। लॉग टेबल आपके सामने होगा, तो किसी भी कैलकुलेशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। log of 1.5, that is the 15 in 0, 1761, characteristic is 0, 0.1761. Actually at first you must put this value of log, you must put this value of log 1.7761, then calculate by taking log of this plus log of this plus log of this plus log of this plus log of this, उसका एडिशन करना है। एडिशन करने के बाद एंटी लॉग देखना है। सिंपल कैलकुलेशन, ये आपको log ऑफ 2.303 प्लस log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 8.314 plus log of 300 plus again log of 0.1761, इतना पूरा कैलकुलेशन आपको करना है। इतने पूरे कैलकुलेशन के बाद आप लिख सकते हो -2.303, इसका लॉग आपको मालूम होना चाहिए, लॉग ऑफ 2 का मालूम है, 8.31 हुआ। पूरा कैलकुलेट करने के बाद जो भी लॉग का एडिशन आएगा उसका एंटी लॉग देखना है। तो कैलकुलेशन का पार्ट तो आपको आना चाहिए, है ना। मैं तो आपको मेथड बताऊंगा। कैलकुलेशन करने के बाद ये जो पूरा आएगा ना, ये जूल में आएगा। इसका आंसर आएगा -2023 जूल। आप कंफर्म करिए, कंफर्म करना है। आपको किलो जूल में भी ले सकते हो आप, 2.023 किलो जूल। ये आर जूल में है ना, आर जूल में है, इसलिए इसका आंसर जूल किलो जूल ऐसा आएगा। ये है सिंपल प्रॉब्लम। मैक्सिमम वर्क, द प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमम वर्क, इन दिस मैक्सिमम वर्क द फार्मूला इज इम्पॉर्टेंट। और एक फार्मूला आपके पास है, ये V2/V1 की जगह आप P1/P2 भी लिख सकते हैं। दैट इज P1V1 is equal to P2V2 according to this Boyle's law. V2/V1 is equal to P1/P2. If you are taking pressure, अगले प्रॉब्लम में बताऊंगा आपको, प्रेशर अपर ले रहे हो तो P1/P2 आएगा, ये टू द बेस 10 आएगा। फॉर्मूला वही रहेगा, अगर थोड़ा सा P1/P2 आने की संभावना है, P1/P2 वहाँ पे रहेगा। अभी देखो ये प्रॉब्लम 2 मोल्स, m is equal to 2 मोल, r is equal to 8.314 जूल, p is equal to 300 केल्विन, ये 20 लीटर, ये 30 लीटर, ओके, 20 लीटर 30 लीटर, 2.303, ओके। हाँ, अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए आपको जाना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम कैसे आएगा मैं आपको बताऊंगा। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम सिंपली इसी फॉर्मूला पे आधारित ये नेक्स्ट प्रॉब्लम होता है। 22 ग्राम ऑफ CO2, 22 ग्राम ऑफ CO2 आर compressed isothermally and reversibly at 298 Kelvin from initial pressure of 100 kilopascal when the work obtained is 1.2 kilojoule. Find the final pressure. मैंने आपको बताया था फॉर्मूला आपको लिखना है, W max, maximum work is performed. The condition for this is isothermally reversibly. Condition for this is isothermally and reversibly. पूरा मैं आपके सामने रखूंगा।
कैलकुलेशन का पार्ट आपको करना है, तो भी क्या निकालना है, कैसे निकालना है, लास्ट तक जाएंगे अपन। कैलकुलेशन के पार्ट आपको घर को छुड़ाने के लिए रखना चाहता हूँ मैं। ये डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू -2.303 एन आर टी बेटे लॉग ऑफ P1 बाय P2, लॉग ऑफ P1 बाय P2। तो एक प्रेशर आपके सामने है, दूसरा प्रेशर नहीं है, वो किलो पास्कल में है, दूसरा भी किलो पास्कल में आने वाला है। तो इसलिए आपको लॉग ऑफ P1 बाय P2 निकाले। V1 बाय V2 या P1 बाय P2 का कोई एक प्रेशर या एक वॉल्यूम नहीं है, तो फिर लॉग की कीमत आपको पहले निकालना है। फॉर्मूला वैसे लिखना है, ये लॉग P1 बाय P2 इजी चलेगा, log P1 by P2 to the base 10 W max। कीमत रखने के पहले जो फार्मूला है वो ऐसे कन्वर्ट करना है इसको। W max which is negative sign 2.303 nRT, it is our formula। log of P1 upon P2 is equal to minus W max upon 2.303 nRT। ये न्यू फार्मूला, मॉडिफाइड फार्मूला, मॉडिफाइड प्रॉब्लम के हिसाब से उसको मॉडिफाई करना है। लॉग ऑफ P1 बाय P2, जो भी आंसर आएगा लॉग ऑफ P1 बाय P2 आएगा। फिर जो आंसर आएगा एंटी लॉग देखने के बाद जो आंसर निकालोगे ना, उसका और डबल एंटी लॉग देखना पड़ेगा, लास्ट में बताऊंगा आपको। ये जो है ना गिवन डाटा डब्ल्यू मैक्स, हमें डाटा के लिए अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। आपके पास वर्क इज परफॉर्म 1.2 किलो जूल है। W मैक्स इज इक्वल टू 1.2 किलो जूल। 1.2 किलो जूल का मतलब क्या है? 1.2 किलो, किलो मीन्स 10⁻³ 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो इसको। 1.2 इंटू 1000 जूल। 1000 जूल का मतलब 12,000 जूल में क्यों ले रहे हो आप? आर जूल में है ना, इसलिए आपको जो वर्क दिया है उसको जूल में रखना है। ठीक है, डब्ल्यू मैक्स 12,000 जूल डिवाइडेड बाय, ये माइनस साइन यहाँ पर रहेगा। ये 12,000 जूल कैसे लेना है? कॉम्प्रेशन का वर्क है, ये देखना पड़ेगा आपको। वर्क ऑफ कॉम्प्रेशन है ना, तो वर्क ऑफ कॉम्प्रेशन पॉजिटिव होता है। अगर ये वर्क ऑफ एक्सपांशन होता काश, तो इसको मैं नेगेटिव रखता यहाँ पे, नेगेटिव वैल्यू। मीन्स इन द फार्मूला व्हाट इज गोइंग ऑन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट व्हाट इज वर्क, हाउ इट इज टू बी गिवन, ये इम्पॉर्टेंट। वर्क ऑफ एक्सपांशन है तो नेगेटिव लेना है आपको, वो नहीं देंगे आपको। साइन, कन्वेंशन साइन आपको लेना है। कन्वेंशन साइन आप लिखोगे तो आपको समझ में आएगा प्रॉब्लम, इतना इजी प्रॉब्लम नहीं है। ये वर्क ऑफ एक्सपांशन नहीं है, वर्क ऑफ कंप्रेशन, इसलिए पॉजिटिव वर्क मैं पॉजिटिव लूँगा। ये नेगेटिव फार्मूला का है। अगर यहाँ पर वर्क ऑफ एक्सपांशन होता तो मैं नेगेटिव लेता, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता। ओके बेटा, ये है 2.303 इंटू 22 ग्राम CO2 है। 22 ग्राम CO2 अपॉन 44 ग्राम, 44 ग्राम इट्स मोलार मास। मोलार मास, molar mass, it is gram per mole, it is gram per mole। So this answer is 1/2 mole, 1/2 mole। 22 gram mole, n is equal to weight in gram upon molar mass in gram, gram per mole। per mole का कन्वर्जन होके मोल हो जाएगा। 1/2 मोल लिखो या फिर आपको 0.5 मोल भी लिख सकते हो, 0.5 मोल। R is equal to 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर आपका कितना है? यहाँ पर टेम्परेचर 298 केल्विन। टेम्परेचर या तो 298 होता है या तो 300 होता है। इनके लॉग आपको आने चाहिए, ये लॉग आपको याद करना चाहिए। ये 2.303, log of 2.303 is equal to 0.3623, ये आपको याद रखनी चाहिए।
log of 300, log of 2.303, log of 300 to the base 10 is equal to 2.4771, log of 50 is equal to 1.6990. बहुत सारे लॉग आपको प्रैक्टिस से याद हो जाएंगे, तो ये पूरे लॉग आपको लिखना है। तो आपका वैल्यू आएगा log of P1 upon P2, ये पूरे कैलकुलेशन के साथ आएगा। इसमें आपको ये जूल कैंसिल होगा, ये मोल कैंसिल होगा, ये केल्विन भी कैंसिल होगा। ओके, फिर वैल्यू नेगेटिव साइन, ये पूरे 1 2 3 4 इन चारों का लॉग देखना है आपको। फिर ये प्रोसेस देखो, log of 1200 माइनस log of 2.303 plus log of 0.5 plus log of 8.314 plus log of 298. P1 upon P2, log of 1200 minus log of this 2.303, log of 0.5, log of 8.314, 298. ये जो भी आएगा ना, आपको लॉग टेबल सामने रख के ये छोड़ना है। मैं प्रोसेस बताऊंगा आपको, पूरा कैलकुलेशन करने के लिए बहुत सारा वीडियो बड़ा हो जाएगा। ये पूरा आंसर आपको आएगा लॉग की कीमत रखने के बाद x, समझो पूरा आंसर जो भी है माइनस प्लस सब करके वैल्यूज पुटअप करने के बाद आपको होना है। तो अगले वीडियो में फिर कैलकुलेशन में आपको बताऊंगा। मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, इसलिए log of P1 upon P2 इज इक्वल टू x आ गया। पूरा एंटीलॉग देखने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद ये आ गया। ठीक है बेटा, फिर एंटीलॉग लिखने के बाद जो आंसर आता है तो उसका आपको डबल एंटीलॉग देखना पड़ेगा। इसका और एक बार एंटीलॉग देखो, आंसर का एंटीलॉग देखना है, क्योंकि P1 अपॉन P2 ये लॉग निकालना है ना, तो ये लॉग दोनों तरफ एंटीलॉग देखना है। एंटीलॉग लॉग कैंसिल होकर P1 बाय P2 होगा, एंटीलॉग ऑफ x। एंटीलॉग ऑफ x y आने के बाद आपको P1 अपॉन P2, वैल्यू ऑफ P1 आपके पास है, फाइनल प्रेशर नहीं है, निकालना है। इनिशियल प्रेशर कितना है? 100 किलो पास्कल। इनिशियल प्रेशर है 100 किलो पास्कल। 100 किलो पास्कल डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू P2। जो भी आंसर आएगा ना, तो x y के लिए आपको छोड़ाने के लिए जगह दे रहा हूं। अगर ये x y भी चाहिए आपको कैलकुलेशन करके लॉग देखने के बाद, तो हम भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर अगला वीडियो जब करेंगे और एक एग्जांपल एक देंगे ना, तो इसका कैलकुलेशन आपको सामने रखूंगा मैं, इसके लॉग देखूंगा, लॉग लिखूंगा पहले, फिर लॉग लिख के उसका कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। ओके बेटा, इट इज टाइप 3 फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमम वर्क Wmax is equal to minus 2.303 nRT log of V2 upon V1, or Wmax is equal to minus 2.303 nRT log of P1 upon P2. Condition is system must be isothermal reversible. Thank you.